प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है। सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश as well as the government of India for providing a great opportunity for the solar and heliophysics community of the country. Both solar, heliophysics as well as astronomy thrives on data. More the data you have, we get more understanding about the system. And Sun is our own star, our dearmost star, so understanding them is much more important for our everyday life. So this mission, Aditya, when it was conceived initially, with a support from our Professor U.R. Rao, along with Dr. Sri Kumar and Professor G. Srinivasan, we made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads, what was conceived for this particular mission, will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions, which will provide us new insight into the solar and heliophysics community in India, and provides some important aspects like the initiation of the coronal mass ejections, the speed at which it gets initiated, and some wavebands which are very important for the Earth ionospheric connections, like near ultraviolet band, and the high energy particles, which is high energy radiations, as well as particles which is coming from the solar flares and coronal mass ejections. So these are the informations which would be available from this particular mission. First of all, let me tell you that Aditya L1 is a multi-wavelength, multi-instrument and multi-directional mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV and visible. Multi-instrument because there are 7 experiments on board. And multi-directional because it looks not only in the sun direction but also around it. Now when the sun becomes angry, there are 2 types of process which happens. One is solar flares, that means electromagnetic radiation, which reaches the earth in 8 minutes. But along with that, there is a mass which is also ejected out in form of plasma, and that can take about 2 to 4 days to reach the earth. What we are looking for from the Aditya L1 mission is to see the impact of solar flares as well as coronal mass ejections as they comes to the earth. We have delivered one of the major payloads on this mission. This is the visible emission line coronagraph. So if you actually look at the words used in it, it is visible because it is seeing the sun on the visible wavelength. Emission line, so what is it detecting? It is the emission line of certain elements. Because the corona is hot, the emission which you get is in the terms of, it's not absorbing the light which is coming from the sun, but it's already hot, so it is coming down by emitting lines. So we are tracking these lines using what? A coronagraph. Now what is a coronagraph? This instrument makes a total solar eclipse all the time within the instrument. So you are looking at the sun all the time, 24/7 through using this mission. और आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो गई है। मुल्क भर में खुशी का माहौल है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर सीआरपीएफ जवानों ने खुशी जताई है। महाक्विज में भाग लेकर अपनी जानकारी परखें और आकर्षक नगद राशि जीतें। www.mygov.in/चंद्र। भारत माता की जय। भारत चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एक और सफलता, आज भारत ने आदित्य L1 लॉन्च करके एक सोलर मिशन शुरू किया है। एक पहला सोलर मिशन है भारत का। जैसा कि देश के 140 करोड़ अवाम इस दिन के इंतजार में थे और उन्हें ये उम्मीद है कि ये मिशन कामयाब होना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा का काम अंजाम देते हैं, वो लगातार इस मिशन की कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। और आज हमने देखा कि ये जो जवान है यहाँ पर हाथों में तिरंगा लहराए, ये बिल्कुल साक्षी बने उस महत्वपूर्ण पल का जब
ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है उन्हें पूरी उम्मीद है, आशा है कि ये जो मिशन है भारत का, जैसे चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब हुआ था, ये मिशन भी आगे कामयाब होगा। हम कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे, जवानों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उत्साह है। आपने जो देखा, जो लॉन्चिंग हुई, तो जो ये लॉन्चिंग आपने देखी, किस तरह का आपका जो उत्साह है, क्या लगता है कितनी बड़ी कामयाबी है भारत की? सर, आज भारत के लिए बहुत खुशी का माहौल है। नासा ने आदित्य L1 का लॉन्च किया है। ये भारत में बहुत खुशी का माहौल पैदा करेगा। ऊपर सूर्य पर जाने के बाद में जैसे चांद 3 को लॉन्च किया था, वैसे ये चांद पे जो नए नए उपकरण मिले हैं, नए नए संसाधन वैज्ञानिकों को जो शोध मिले हैं, वैसे ही सूर्य पर जाने के बाद मिलेगा। इनका ये पूरा विश्वास है कि जैसे चंद्रयान 3 से लगातार वहां से इमेजेस मिल रही हैं और भारत का जो लक्ष्य है कि जो जितना भी जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में किस तरह की प्रक्रियाएं हो रही हैं, किस तरह के वहां पर उसका असर धरती पे क्या पड़ रहा है, उन्हें पूरी आशा है कि यहाँ की ये जो मिशन लॉन्च किया गया है, इसके भी कुछ अच्छे ही नतीजे सामने आएंगे। जो वैज्ञानिक हैं उन्हें वो ऐसी तस्वीरें वहां से लेके आएंगे जिससे जो ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे भारत आगे बढ़ सकता विज्ञान के क्षेत्र में। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज आप साक्षी बने हैं, कितना बड़ा दिन है और क्या कुछ कहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे भारत के वैज्ञानिक इसरो के जितने भी वैज्ञानिक हैं, ये सब विश्व में अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं। चंद्रयान की सफलता के बाद हमारा ये भारत देश लक्ष्य पर है कि हम सूर्य ही नहीं सभी ग्रहों पर पहुंच करके वहां के भौगोलिक स्थिति के बारे में, वहां के कण कण के बारे में जानकारी लेकर के विश्व को हम इस ज्ञान को जो है बताएंगे कि वहां के हर कण कण में क्या छिपा है, हर राज्य में क्या छिपा है, ताकि उसके वहां पर क्या हमारी जो है उस हवा में क्या है, उस आयनोस्फीयर में क्या है, और वहां की सौर की कितनी पावर है, उस सौर से हम जो है उस सौर ऊर्जा से हम यहाँ पर हर क्षेत्र में कितना उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत आशाएं जगी हुई हैं और सबकी निगाहें, पूरे विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। जैसे भारत ने सफलता चंद्रयान पर किया और अपना डंका बजा दे विश्वमंडल पर, इसी तरह से आज सूर्य पर अपना जो है झंडा गाड़ करके पहुंच करके वो पूरे विश्व को बताएगा कि देखिए हम वहां पहुंच करके अब सूर्य से कितनी हमको ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा किस क्षेत्र में हम लगा रहे हैं, तो सब विश्व की निगाहें इस पर टिकी हुई है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी जो CRPF के पर्सनल हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो जवान हैं, लगातार वो यही कह रहे हैं कि भारत ने जिस तरह से उन्नति की है इस क्षेत्र में आगे भी ये मिशन उसका जारी रहेगा। कुछ और भी ऑफिसर्स यहाँ हैं CRPF के। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह का ये मिशन है, कितना बड़ा मिशन है और कितनी बड़ी सफलता है भारत के लिए? ये चंद्रयान 3 के बाद भारत के लिए आदित्य L1 बहुत ही बड़ा मिशन है। ये बहुत बड़ी सफलता है, भारत देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए यह सफलता का विषय है और भारत के लिए गौरव का विषय है। आने वाले समय में हमें पूरे सौरमंडल से लेके हमारा जो चंद्रयान से लेके हमारा आदित्य L1 पूरा सूर्य के बारे में जानकारी देगा। इससे हमें पूरे विश्व के बारे में जानकारी मिलेगी कि किस क्षेत्र में कितनी गर्मी होगी, किस क्षेत्र में बरसात होने की संभावना होगी। मेडिकल साइंस में इससे हमें फ़ायदा मिलेगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में कि बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इसमें खोजबीन कर पाएंगे, अपनी रिसर्च पूरी कर पाएंगे और इससे देश हमारा तरक्की करेगा। देश ही नहीं, पूरा विश्व में हिंदुस्तान से जो है आपकी वैज्ञानिक नीतियाँ, आपके जो है पूरा जिस तरह से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो रिसर्च करते हैं वो हिंदुस्तान में से मदद लेंगे। तो ये जो मिशन है, मैं आपको बता दें कि ये मिशन जो है, ये जो आज लॉन्च किया गया है आदित्य L1 को 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी है और इसमें 125 से 127 दिन लग सकते हैं। लेकिन यहाँ जो लोग हमारे साथ हैं, जैसा कि आपने सुना, ये सब ये कामना करते हैं कि ये मिशन कामयाब हो जाए और जहाँ देश के 140 करोड़ अवाम ये प्रार्थना कर रहे हैं जैसे चंद्रयान 3 कामयाब हुआ था, वैसे ही आदित्य L1 भी कामयाब हो जाए। सुरक्षा बल के ये जवान भी लगातार खुशी मना रहे हैं और इसी कामना के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि ये मिशन भी कामयाब होगा। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।
और उधमपुर में सीआरपीएफ के 187 बटालियन के अफसरों और जवानों ने आदित्य L1 सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग का जश्न मनाया। कमांडेंट 187 बटालियन एमडी साजिद ने कहा कि ये एक तारीखी दिन है और हमने इस दिन को शानदार तरीके से मनाया। इन्होंने मजीद कहा कि इस तारीखी दिन पर जवानों में मिठाइयां तकसीम की गईं। भारत की इस कामयाबी और तरक्की से हम सबको फख्र महसूस हो रहा है। हमने इसी तरह सेलिब्रेट किया कि ये एक बहुत बड़ा हमारे भारत के इतिहास में एक आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जब हम सूरज को हम फतह करने निकले हुए, सूरज से जो किरणें निकलती हैं उनको स्टडी करने के लिए आदित्य L1 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है और ये लैग्रांज पॉइंट 1 नंबर तक जाएगा और ये 4 महीनों के सफ़र में वहाँ जाके स्थापित होने के बाद बहुत से डाटा हमारे पास भेजेगा जिसकी स्टडी करके हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ेगा। और हम एज देश के सैनिक होने के नाते, सीआरपीएफ के कार्मिक होने के नाते पूरा बल, हमारा पूरी वाहिनी बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है और उम्मीद करते हैं इसी तरह इसरो और आगे बढ़ के और काम करे और देश का नाम रोशन करे।